Let us go to set number 4. Again on your screen. So a team is to be selected among 10%. So this is a new kind of question. Okay, this is a new kind of question. So what I would like to do is, I will give you about 5 minutes to understand the data and understand the constraints. आपको ये सारे दिए जो हैं, constraints दिए हुए हैं. Constraint का मतलब क्या होता है? Constraint का मतलब होता है something you cannot do, or something that is a limitation, or something that is forbidden. So please understand the constraints. उसको एक बार अच्छे से अपने rough work में लिखिए. Take 5 minutes. उसके बाद we will go to the questions. So take 5 minutes. Pause the video. Understand each and every constraint. Note them down and resume after you are done. Alright, so I hope by now you have noted down all the constraints, right? चलिए पहले मैं आपको questions की तरफ ले जाऊंगा. Who among the following cannot be a member of a team of size 4? So in this question, every question will require specific amount of time. Okay. So with this question, I would like to give you maximum of 3 minutes, right? Maximum of 3 minutes, because every question will require some amount of time. ये वो नहीं है कि टेबल बन गया और सीधा 30 सेकंड में आंसर. नो, ये ऐसा नहीं है, इसमें टाइम लगेगा. सो आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स. अगर ज्यादा चाहिए तो 1-2 मिनट और ले सकते हैं, बट 3 मिनट इज व्हाट आई एम गिविंग एज अ लिमिट. सो पॉज द वीडियो, ट्राई फॉर 3 मिनट्स, resume after you are done. Alright, so I hope you have tried to solve this one in the stipulated amount of time. Question 2. What could be the size of a team that includes both F and H? What could be the size of the team that includes both F and H? So once again, new question, new type of constraints to be looked at. So I'm going to give you 3 minutes. Pause the video for 3 minutes and resume after you are done. Alright, so hope you are done by now. Let's go to question 3. In how many ways can the team of size 6 be selected if it includes E? In how many ways can the team of size 6 be selected if it includes E? So once again, new question. Take 3 minutes. अगर चाहिए तो आप 1-2 मिनट और ले सकते हैं. So take 3 minutes. Try it on your own, pause the video and resume after you are done. Alright, so I hope you have tried to solve it by now. Let's go to question number 4. What is the largest possible size of the team? Interesting question. Largest possible size of the team. So 3 minutes is what you have. Try to solve it under 3 minutes. अगर चाहिए तो 1-2 मिनट और ले सकते हैं. But I am giving you 3 minutes for this one. So pause the video for 3 minutes, try to solve it on your own, resume after you are done. Alright, so I hope you have tried and solved this question. So let's solve this whole set together. This was a little complicated set, right? Because for the first time you are given to deal with the constraints, right? Chali, let's start reading the set together. A team is to be selected from among 10 persons, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. So that's good. From the first 10 letters, we have to select a team. Now we have been given some constraints, right? Some constraints. For example, exactly 2 among E, J, I, C must be selected. If F is selected, then J cannot be selected. So we have to understand each and every constraint, and we have to make sure that we have the right combination. Okay. So let's do one thing. Let's try to convert these constraints into the choices that we have. Okay. Let's say from the first constraint, we have to select exactly 2 among E, J, I, C. E, J, I, C, and we have to select exactly 2. Okay. So let me make a note of the constraint that we have to select exactly 2 from E, J, I, C. So we can have E, J. We can have EI, we can have EC, we can have JI, we can have JC, or we can have IC. These are the 6 choices we have, and we must have one of these choices in the team. देखो ये अच्छी बात है, none का ऑप्शन नहीं है. इनमें से कोई ना कोई एक कॉम्बो अपनी टीम में आना ही चाहिए, right? That was the first constraint. What is the second constraint? Sorry. Yeah.
if F is selected then J cannot be selected. Please understand this. अगर F को सिलेक्ट किया आपने तो आप J को सिलेक्ट नहीं कर सकते. What does it mean? It means that या तो आप F को सिलेक्ट कर सकते हो, या तो आप J को सिलेक्ट कर सकते हो, या तो आप इन दोनों में से नन को सिलेक्ट कर सकते हो. FJ नहीं हो सकता, F और J साथ में नहीं आ सकते. So that's our second constraint, F or J or none. So let me write here. Second, you can have F or J or none. देखो यहाँ पर नन का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर नन का ऑप्शन है. F करो या तो J करो या तो नन करो. ठीक है, अगर J है तो F नहीं आएगा, राइट. दोनों साथ में नहीं आ सकते, F और J साथ में नहीं आ सकते. F आएगा, J आएगा या तो नन आएगा. ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं. Exactly one among A and C must be selected. So that's simple enough. A या C में से कोई भी एक. So let's note it down. A कर सकते हो या तो C कर सकते हो. नन का ऑप्शन अगेन यहाँ पर आपके पास नहीं है. फोर्थ कंस्ट्रेंट क्या बोल रहा है? Unless A is selected, E cannot be selected. Please understand this statement. Unless A is selected, E cannot be selected. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर if E is selected, A must be selected. अगर E सिलेक्ट हुआ है तो A को आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा. अगर A सिलेक्ट हुआ है तो आपको E को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, राइट. दैट मीन्स A एंड E साथ में आएंगे. दैट मीन्स A एंड E साथ में आएंगे, राइट. अगर आप E को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको A को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा. So that means we have A and E together. Let's note it down. AE. We have AE or none. देखिए या तो अगर दोनों को कीजिए AE या तो दोनों में से किसी को मत कीजिए. अकेला A और अकेला E नहीं आ सकता. अकेला A और अकेला E नहीं आ सकता. So that's a constraint. Next. If and only if G is selected, D must not be selected. अगर आपने G को सिलेक्ट किया है then you cannot have D. और वही अकेला एक ऐसा केस है जहां पर D नहीं होगा. So please understand what they mean. If G is there, then D cannot be there. लेकिन बाकी सारे केसेस में D has to be there. इसका मतलब अगर G है तो D नहीं है, अगर G है तो D नहीं है, और अगर D है तो G नहीं है. सिंपल. सो हमारे पास दो चॉइसेस हैं. कौन से दो चॉइसेस? Either you can have G or you can have D. या तो G होगा या तो D होगा. ओके, या तो G होगा या तो D होगा. Let me make them as or वाले केसेस. You are able to understand that this is not comma, this is or. Okay, या तो G होगा या तो D होगा, या तो G होगा या तो D होगा. Sixth constraint. What is it? If D is not selected, then H must be selected. देखो तो ध्यान से पढ़िए. अगर D नहीं है तो H पक्का होना चाहिए. मतलब मान लो D नहीं है तो आप H तो रखोगे. मान लो D नहीं है तो H रखोगे. दूसरा केस, मान लो अगर D है तो D अकेला भी हो सकता है और D H के साथ भी हो सकता है. D अकेला भी हो सकता है या तो D के साथ भी हो सकता है. So there are three cases, H, D, HD. नन वाला पॉसिबल नहीं है. HD, HD नन वाला पॉसिबल नहीं है. So let's mention it. Either you will have H or you will have D or you will have HD. None possible नहीं है, right? These are the constraints. आपकी टीम में इतने लोग जो ऑप्शंस हैं उतने होने ही चाहिए, right? तो ये हमने क्या किया, कंस्ट्रेंट्स को चॉइसेस में कन्वर्ट कर दिया. We have converted the constraint into choices, है ना. तो चलिए अब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं. So the first question, who among the following cannot be a member of a team of size 4? कौन सा ऐसा मेंबर है जो 4 लोगों की टीम नहीं हो सकता उसका? E है ऑप्शन, H है, F है और none of this. तो हम क्या करेंगे, we will pick up every one of them और हम ट्राई करेंगे कि 4 लोगों का टीम बन जाए, है ना. we will pick up every one of them और हम चाहेंगे कि 4 लोगों का टीम बने. तो चलिए स्टार्ट करते हैं E से. So let's go back to our constraint.
एक मेंबर मैंने ई ले ही लिया है, चलो ई लिया है तो ए लेना ही पड़ेगा, ई लिया है तो ए लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ई ए ले लिया, ई के साथ ए आ गया, उसके बाद क्या करेंगे हम, ई के साथ मुझे किसी न किसी को तो लेना ही पड़ेगा, ई के साथ मुझे किसी न किसी को लेना ही पड़ेगा। अच्छा एक और बात, अगर ई ए हमेशा आएगा तो मतलब ई ए और ई सी ऐसा नहीं आ सकता, बिकॉज ई आएगा तो ए आएगा और ए आएगा तो सी नहीं आएगा, मतलब दिस इज गॉन, अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, सो दिस इज गॉन, इसको मैं निकाल देता हूँ, है ना, हमारी चॉइसेस और थोड़े से कम हो गए, चलो बहुत बढ़िया। ई ले लिया है, ए ले लिया है, यहाँ से मुझे किसी एक को लेना पड़ेगा, यहाँ से हमें किसी एक को लेना पड़ेगा, तो लेट्स ट्राई टू पिक अप एनीवन, so let's say ई ले लिया है, ए ले लिया है, लेट्स पिक अप आई, तो ये कंस्ट्रेंट सैटिस्फाई हो गया। एफ जे में से मुझे किसी को नहीं लेना, तो ये नन में ले रहा हूँ, तो ये भी सैटिस्फाई हो गया। ए या सी में से एक होना चाहिए, तो ये भी है, ये भी सैटिस्फाई हो गया, या तो ई होना चाहिए या तो नन होना चाहिए, तो ये भी सैटिस्फाई हो गया। चलिए अब इन दोनों को सैटिस्फाई करना है, अगर मैं डी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इफ आई पिक अप डी, सो ये भी सेटिस्फाई हो गया और ये भी सेटिस्फाई हो गया, तो ये सारे कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो गए, तो मतलब ये टीम चलेगा, है ना। अब मैं निकाल देता हूँ बिकॉज हमें दूसरा भी चेक करना है। ओके, सो ई तो अपना आंसर नहीं है, ई इज नॉट द आंसर। एच ट्राई करते हैं, एच। आप देखिए अभी हमने जो टीम बनाया था, उसमें हमें अब एच लेना है। चलिए एच कैसे पकड़ेंगे, एक मेंबर एच है, सो ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो गया। एच ले लिया है, जी या डी में से कोई एक इंसान होना चाहिए, तो चलिए काम करते हैं, हम लोग ले लेते हैं जी को, तो एच और जी ले लिया हमने, ओके, सो ये भी सेटिस्फाई हो गया, ओके। अब हमें इनको सेटिस्फाई करना है, वी हैव टू सेटिस्फाई दीज, इनको कैसे करेंगे। चलिए हमने अगर एच ले लिया है, डी ले लिया है, अगर हम लोग ई ए ले लेते हैं, ई ए, तो ई ए लेने के बाद एक नंबर यहां से लेना पड़ेगा, तो ई ए को नहीं ले सकते, है ना, ई ए को नहीं ले सकते, सो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। चलिए व्हाट इफ आई टेक जे एंड सी, चलो सोचो जे और सी ले दो, ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फाइड, यस, यहां से हमने जे लिया है तो ये भी सेटिस्फाइड, ए या सी में से सी है तो ये भी सेटिस्फाइड, ए में से किसी को लिया ही नहीं तो नन, मतलब ये भी सेटिस्फाइड, तो यस ये भी टीम पॉसिबल है। ब्यूटीफुल, आई होप यू आर एबल टू कोप विथ व्हाट आई एम डूइंग। हम क्या कर रहे हैं, सारे कंस्ट्रेंट पे जाकर चेक कर रहे हैं कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, चार लोगों की टीम बनानी है और ये मेंबर होना चाहिए था, ये मेंबर होना चाहिए था, हम वैसे चेक कर रहे हैं, तो सेकंड एच वाला भी टीम पॉसिबल है, तो दैट मीन्स एच भी हमारा आंसर नहीं है, तो मैं यहाँ पर इनको हटा देता हूँ। चलिए एच भी आंसर नहीं है, एफ के साथ ट्राई करते हैं, एफ, एक टीम मेंबर एफ होना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई हो गया कंस्ट्रेंट पहले से ही, है ना, ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो गया है, एफ ले लिया है हमने। ओके अब क्या करेंगे, चलिए हम जे को नहीं ले सकते अभी, तो ईजे नहीं आ सकता, जे आई नहीं आ सकता, जे सी नहीं आ सकता, सो दैट मीन्स ई आई आ सकता है। तो अगर मैं ई लेता हूँ और फिर मैं आई लेता हूँ, अगर हम ई लेते हैं और फिर आई लेते हैं, तो ई को लेने पर ए को भी लेना पड़ेगा और फिर जी डी में से कोई एक आना चाहिए, एच डी में से कोई आना चाहिए, तो ई को लेना ट्रबलसम हो जाएगा, ई को नहीं ले सकते आप ई को भूल जाओ, तो ई को भूल जाए अगर हम लोग, तो हमारे पास ऑप्शन बचता है आई सी, तो एफ आई सी ले लिया, तो ये सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड, और यहाँ ए ई नहीं है तो ये भी सेटिस्फाइड। अब जी डी और एच डी में से इसी एक को लेना, तो मैं डी को ले लेता हूँ, तो ये भी सेटिस्फाइड और ये भी सेटिस्फाइड, है ना, ये भी सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड। तो अब जाकर हम चार लोगों का मेंबर इसके साथ भी बना सकते हैं, तो चार का टीम सारे ऑप्शंस के साथ पॉसिबल है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस। काफी ट्रिकी क्वेश्चन है बिकॉज आपको हर एक ऑप्शन में जाकर
हर एक ऑप्शन में जाके आपको चेक करना है कि ये पॉसिबल है या ये पॉसिबल नहीं है, राइट? एंड आई एम टेकिंग इट डेलिबरेटली स्लो बिकॉज आई वांट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड, I want all of you to understand that you have to fulfill each and every criteria, you have to fulfill each and every condition, सारे कंस्ट्रेंट को फुलफिल करना पड़ेगा आपको, है ना? दैट वाज क्वेश्चन 1, ट्रिकी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। What could be the size of a team that includes both F and H? F और H दोनों को इंक्लूड करना हो तो टीम का साइज क्या पॉसिबल है? चलिए लेट्स गो बैक टू द कंडीशंस। देखो F और H दोनों को आपको इंक्लूड करना है, F और H दोनों को आपको इंक्लूड करना है, ठीक है? मान लो कि यहाँ पर ये जो मेरा F वाला टीम है FICD, ये मिनिमम टीम है FICD, इतने लोग तो होने चाहिए। ये जो पहले क्वेश्चन में हमने इसको प्रिपेयर किया था उसी पे मैं बिल्ड ऑन कर रहा हूँ। FICD हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है, राइट? FICD, तो इसी टीम में अगर मैं H को इंक्लूड कर लूँ तो प्रॉब्लम होगा? नहीं। देखो 6 कंस्ट्रेंट बोलता है कि या तो H लो या तो D लो या तो दोनों का ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ बस मैं H को ऐड कर देता हूँ, तो FICDH ये एक टीम बन के आ जाता है जहां पर F भी है और H भी है ना? आप इसको भूल जाइए। ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो काम में नहीं आने वाला वो पार्ट है। हमने F वाले सोल्यूशन में बस H को ऐड कर दिया। और अब आप सोचिए क्या सारे कंस्ट्रेंट मैनेज हो रहे हैं? चलो यहाँ पर अपने पास IC है, IC तो ये हो गया फुलफिल। इधर हमने F लिया है तो ये हो गया फुलफिल। E या C में से C है अपने पास तो ये भी फुलफिल। E होना चाहिए या तो नन होना चाहिए, तो ना है ये नन है, मतलब हमने इसको फुलफिल कर दिया। G या D में से कोई है तो देखिए हमने D ले लिया है तो ये भी सैटिस्फाइड। HD या HD दोनों, तो हमने D और H दोनों को ले लिया है तो ये भी सैटिस्फाइड। दैट मीन्स 5 मेंबर का टीम हम बना सकते हैं, 5 मेंबर का टीम हम बना सकते हैं। तो आंसर इज 5। So let us go to the question and mark our answer 5। 3 वाला पॉसिबल नहीं है, 4 वाला पॉसिबल नहीं है, 5 वाला पॉसिबल है। सवाल ये था व्हाट कुड बी द साइज। ना मिनिमम पूछा है ना मैक्सिमम पूछा है, बस पॉसिबिलिटी पूछा है। और उसमें हमने देखा कि 5 का टीम सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो बिना कुछ सोचे 5 को मार्क कर दीजिए। बिकॉज ना मिनिमम पूछा है ना मैक्सिमम पूछा है, मुझे उसकी चिंता नहीं करनी। पॉसिबल आ गया, दैट्स इट, माय जॉब इज डन। दैट वाज क्वेश्चन 2। अगेन काफी ट्रिकी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, इन हाउ मेनी वेज कैन द टीम ऑफ साइज 6 बी सिलेक्टेड इफ इट इंक्लूड्स E। देखिए ये इंपॉर्टेंट डेटा है, E इंक्लूड होना चाहिए और साइज होना चाहिए 6। E इंक्लूड होना चाहिए, साइज होना चाहिए 6। चलिए सोचते हैं, लेट्स गो बैक टू आवर कंडीशंस, क्योंकि वहां पर अपने पास अच्छा खासा स्पेस है। ओके, इनको भी निकाल देते हैं, इनका काम नहीं है अभी। ओके, पहली बात E होना चाहिए, दूसरी बात साइज 6 होना चाहिए। ओके, देखिए E अगर है तो A भी होगा इस कंडीशन के हिसाब से। सो हमें ये पता चलेगा कि E भी होना चाहिए और A भी होना चाहिए। E तो होगा ही होगा, E और A तो होगा ही होगा, ठीक है। चलो E है तो C नहीं होगा फॉर श्योर, तो एक चीज मैं यहाँ पर A B C D E F G H I J, C कैंसिल, क्योंकि अब A आएगा ही आएगा तो C कैंसिल हो जाएगा, तो C गया, ठीक है। ओके, A और I लिया है हमने, A और I को चूज किया है, मतलब ये कंडीशन सैटिस्फाइड हो गई। अब मुझे और नई टीम बनानी है, ठीक है। तो E के साथ मैं कौन से कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ? या तो EJ हो सकता है या तो EI हो सकता है, राइट? या तो EJ हो सकता है या तो EI। ना JI होगा ना JC होगा ना IC होगा, E होना ही चाहिए। तो अब हम ये सोचेंगे कि भैया कुछ टीम होंगी जो होंगी EAI वाली, कुछ टीम होंगी EAI वाली और कुछ टीम होंगी EAJ वाली। कुछ टीम होंगी EAJ वाली, है ना? ओके, वंस अगेन कंस्ट्रेंट को फुलफिल करना है, उसी डायरेक्शन में सोचिए कि अब क्या करेंगे। चलो EA और EAI वाली कितनी टीम्स में बना सकता हूँ? तो EAI वाला सोचते हैं, ये कंस्ट्रेंट सैटिस्फाई हो चुका है बिकॉज हमने EI ले लिया है। F ले सकते हो या तो J ले सकते हो या तो नन ले सकते हो, तो ये अभी तक कंस्ट्रेंट सैटिस्फाई नहीं हुआ है। A और C कंस्ट्रेंट सैटिस्फाई हो गया है, AE कंस्ट्रेंट सैटिस्फाई हो गया है।
मुझे 3 और मेंबर चाहिए। मेरे पास ऑप्शन है एफ ले सकता हूँ, जे ले सकता हूँ तो नन, जी ले सकते हैं तो डी ले सकते हैं, एच डी या तो एच डी। चलिए तो नाउ लेट्स थिंक अबाउट इट। जी या डी में से किसी एक को तो लेना ही लेना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जी और डी में से कोई एक, जी और डी में से कोई एक, ठीक है। तो ये कंस्ट्रेंट भी सेटिस्फाई हो गया। ओके, अगर मुझे सिर्फ डी लेना है, अगर मुझे सिर्फ डी लेना है तो मतलब मैं एच को नहीं ले रहा हूँ, तो मतलब मैं एच को नहीं ले रहा हूँ। अब मेरे पास ऑप्शन है एफ ले सकते हैं, जे ले सकते हैं या तो नन। मान लो अगर मुझे नन लेने हैं तो और कौन से बचे हैं जिनको मैं ले सकता हूँ? चलो ए नहीं, बी, बी बचा हुआ है तो हम बी को ले सकते हैं, है ना, बी ले सकते हैं, एफ जी एच आई नहीं, आई ऑलरेडी आ चुका है, जे, जे हमने नहीं लिया है, जे हमने नहीं लिया, यहाँ से हमने ई और आई ले लिया है तो हम जे को नहीं ले सकते, हम जे को नहीं ले सकते, हम एफ को ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एफ को ऐड कर देता हूँ। तो ई ए आई जी या डी में से कोई एक, बी एंड एफ, ये मेरा एक टीम बन गया। जी लेंगे तो एक टीम, डी लेंगे तो एक टीम, तो मतलब कितने टीम बन गए? 2 टीम बन गए। यहाँ से किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जी डी के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। सो ई ए आई जी या डी बी एफ, ओके। चलो अगर मुझे एच भी लेना हो तो क्या करेंगे? तो पहले तो ई ए आई, ठीक है, जी या डी में से कोई है, जी या डी में से कोई है। अब मैं क्या करूंगा? मुझे लेना है एच, तो जी लोगे तो भी आप एच ले सकते हो, डी लोगे तो भी आप एच ले सकते हो, तो एच को इंक्लूड कर लो, ओके। तो ई ए आई जी या डी में से कोई है एंड एच। अब एक मेंबर बचा है, एक मेंबर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? एक मेंबर के लिए मैं एफ को ले सकता हूँ। तो अगर मैं एफ को ले लूँ तो ई ए आई जी डी में से कोई एक, एच एंड एफ, तो भी सारे कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो गए, तो इसके भी 2 टीम्स, इससे भी 2 टीम्स, है ना। और अगर मैं एफ को ना लूं, अगर मैं एफ को ना लूं तो फिर कुछ बन पाएगा? नहीं, फिर कुछ नहीं बन पाएगा, राइट। तो ई ए आई जी आई डी में से कोई एक, एच एंड एफ, ई ए आई जी आई डी में से कोई एक। फिर अगर मुझे बी लेना हो तो उसके साथ एच, एच आ सकता है, हाँ आ सकता है। सो एक और यही भी लिख देते हैं, ई ए आई, ओके, ई ए आई जी या डी में से कोई एक, एच एंड डी। चलो क्या ये कंडीशन सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं? ई ए आई तो लेने ही लेने हैं, करेक्ट। बी मैंने लिया है यहाँ पर, एच लिया है, तो बी एंड एच, जी या डी में से कोई एक तो लेना ही लेना है, एच ले रहे हैं हम लोग, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड। ए या सी में से कोई एक तो वो कंडीशन सेटिस्फाइड। ये दोनों एफ होना चाहिए, तो जे होना चाहिए, तो नन होना चाहिए, तो मतलब यहाँ पर ना तो एफ है ना तो जे है, मतलब नन है, तो वो भी कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है, राइट। सो आई थिंक वी आर सेटिस्फाइंग एवरीथिंग। तो ये हमारे 2 टीम्स हैं, जी और डी पे डिपेंड करता है कि क्या होगा, राइट, जी या डी पे डिपेंड करता है, ओके। अब एक और टीम बनाते हैं, ई ए जे वाला टीम। सो ई ए जे, ई ए जे, ठीक है, ई ए जे। सो वहां से हम क्या करेंगे? ई ए के साथ हमने ई जे ले लिया है, तो ये सेटिस्फाइड, यहाँ से ये भी सेटिस्फाइड, ये भी आ गया सेटिस्फाइड, ये भी आ गया। तो अब इनकी ही बात है, हमें चाहिए 3 मेंबर, हमें चाहिए 3 मेंबर। तो क्या करेंगे? जी आई डी में से कोई एक तो होना ही चाहिए, जी आई डी में से कोई एक होना ही चाहिए। तो लेट्स से अगर मैं जी को लेता हूँ तो मैं यहाँ पर एच डी को नहीं ले सकता, बिकॉज अगर जी होगा तो जी आई डी में से कोई एक होना चाहिए। आई कैन नॉट टेक जी, आई हैव टू टेक एच, सॉरी आई हैव टू टेक डी एंड एच, और साथ में जो मेंबर बच गया वो बी। So E A J F D H B, this is the team possible, right? This is the team possible. अगर मैंने यहाँ पर G ले लिया तो मैं D नहीं ले सकता, so I can have G and H। तो यहाँ पर आएगा G, उसके साथ H, G के साथ H आ सकता है, तो G इधर आ गया, यहाँ से अकेला H आ गया, yes, और यहाँ से B आ गया, so E A J G H B, and similarly E A J D H
राइट, ये भी 6 लोगों का टीम है, ये भी 6 लोगों का टीम है, करेक्ट। अब देख लीजिए बस कहीं पर हमने कोई मिस्टेक तो नहीं किया, कहीं पर कोई कंस्ट्रेंट फॉलो ना हो रहा हो, ये चेक कर लीजिए। फॉर एग्जांपल EAJDHB, सो GD में से मैंने D लिया है एंड HDHB में से भी D लिया है, so that is fine with me, okay। B is okay, B जो बाकी मेंबर था वो हमने लिया है यहाँ पे, ओके। EAI GDBF, EAI GDHF, EAI GDHB, so once again we have to check कहाँ पर कोई कंस्ट्रेंट मिस ना हो रहा हो हमसे। So for example हमने यहाँ पर F लिया है, so F we have taken EAI G या D से कोई भी एक, so EAI GBF, that is fine because यहाँ पर okay, अगर हम लोग ये टीम लेते हैं, ये वाला जहाँ पर H नहीं है, so EAI मान लो G लेते हैं हम, just considering one of the two cases, EAI GBF, problem is that 6 कंस्ट्रेंट होता है कि H होना चाहिए, D होना चाहिए या तो HD होना चाहिए, तो यहाँ पर हम G नहीं ले सकते बिकॉज एक जगह नहीं बची है H या D के लिए, so we have to have H here, sorry D here, in that case ये भी satisfy हो जाएगा और ये भी satisfy हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर 1 टीम ही बनेगी, तो 1 टीम 2 टीम 2 टीम, ये एक और टीम और ये एक और टीम, टोटल कितने हो गए 7 टीम्स। वंडरफुल क्वेश्चन, आई वुड से वेरी डिफिकल्ट, करेक्ट। 5 मिनट लग सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, राइट, इवन फॉर एनीवन, चाहे आप एग्जाम दे रहे हो चाहे मैं एग्जाम दे रहा हूँ, 5 मिनट लगेंगे। सो 7 टीम्स इज द आंसर, बट देन वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट, यहीं पर हम लिख देते हैं वेरी डिफिकल्ट, राइट, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बट यस लॉजिक क्रैक करने में मजा आता है, राइट, दैट इज वेरी यू लर्न। अपने इस वीडियोस का पर्पस है कि आप कुछ क्वेश्चंस को अपने आप करो, कुछ मैं करूं, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप देखो कि मैं कैसे कर रहा हूं और फिर आप अपना लॉजिक लगाओ, दैट इज द पर्पस ऑफ दीज वीडियोस। आपका सीखना इंपॉर्टेंट है, आपका आज कर पाना इंपॉर्टेंट नहीं, करेक्ट, वो प्रैक्टिस से बिल्ड ऑन होगा, बट आज आप क्या सीख रहे हो कि हाउ डू आई थिंक, हाउ डू आई मेक केसेस, हाउ डू आई मेक श्योर कि जो मेरा आंसर वो सही है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम जो सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पर अगर हमने ये वाला करेक्शन नहीं किया होता तो हम शायद 8 मार्क करके आते और वो गलत आंसर होता, क्योंकि हम सारी चीजों को वेरीफाई करना भूल गए, बट नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज वेरीफाई द केसेस कि क्या सारे केसेस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं फॉलो हो रहे हैं, राइट। So that's about it, correct, that was question 4। इस चीज को आप लिख लीजिए, I am removing myself from the screen, make sure that you write down the solution somewhere so that you have something to refer back जब आप अपने आप इसको solve कर रहे हैं, right। Alright, so I hope by now you have saved this one, you have jotted down these combinations। चलिए let's go to the last question of this set। What is the largest possible size of the team? देखो अच्छा क्वेश्चन, largest possible size of the team, okay। चलिए कंस्ट्रेंट्स पे वापस चलते हैं, हमारा काम है लार्जेस्ट टीम सिलेक्ट करना, so let me remove all this। Great। लार्जेस्ट टीम कैसे सिलेक्ट करेंगे हम लोग? लार्जेस्ट टीम हमको सबको सिलेक्ट कर लेना, तो अभी जहां जहां पर हमें मौका मिलेगा हम वहां पर ट्राई करेंगे कि सबको सिलेक्ट कर लिया जाए, ओके। लेट्स से मैं ई जे में से ई को लेता हूं और मान लो मैं जे को लेता हूं, तो ई को ले लिया, जे को ले लिया, ये कंस्ट्रेंट सैटिस्फाई, ओके, तो ये सैटिस्फाई। एफ या जे में से मैंने जे को लिया है, ए या सी में से किसी एक को लेना है, तो लेट्स टेक ए, तो ये भी सैटिस्फाइड। ए या तो नल में हमने ई को लिया, ये भी सैटिस्फाइड। जी या डी में से किसी एक को लेना है, तो लेट्स टेक डी,
जी या डी में से किसी को लेना तो लेट्स टेक डी, तो ये भी सेटिस्फाइड। एच या डी और एच डी में से किसी एक को, एच या डी या एच डी में से किसी एक को, सो वी कैन टेक एच डी, सो इधर एच डी आ जाएगा, ठीक है। सो ई जे ए डी एच, आप क्या करेंगे, तो ई जे ए डी एच और एक मैं लिख सकता हूँ बी, ई जे ए डी एच बी, राइट। ये अभी तक हमारा 6 लोगों का टीम, ओके। हमने यहाँ पर क्या किया था, ई को लिया था, तो एक काम करते हैं हम ई के बिना ट्राई करते हैं। लेट्स सिलेक्ट सम अदर कॉम्बिनेशंस। फॉर एग्जांपल व्हाट इफ आई टेक जेसी, राइट, व्हाट इफ आई टेक जेसी, तो चलिए जे को लिया, सी को लिया, तो ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फाइड। एफ या जे में से किसी को लेना है तो जे को ले लिया, तो एफ को नहीं ले सकते। तो अगर मुझे एफ को इंक्लूड करना है तो मुझे जे को रिमूव करना पड़ेगा। तो काम करते हैं आई और सी लेते हैं, चलिए। इफ आई पिक अप आई एंड सी, so that means मैंने एफ या जे में से किसी को लेना, तो आई कैन टेक आल्सो एफ, बिकॉज़ जे नहीं लिया मैंने। So ICF, first constraint satisfied. Second constraint satisfied. हमने F या J में से किसी को लिया है, right? So ICF. Third constraint भी satisfied because IC ले लिया, तो A या C में से C आएगा, okay? A होना चाहिए तो none होना चाहिए, तो हम A और E दोनों को नहीं ले रहे हैं, है ना। हमने यहाँ से E को कैंसिल कर दिया, हमने यहाँ को ए को कैंसिल कर दिया, यहाँ से ई को कैंसिल कर दिया, तो ICF, करेक्ट। यहाँ से हम इसको नहीं ले रहे हैं, यहाँ से हम नहीं ले रहे हैं ई को एंड जे को, तो ई जे कैंसिल नहीं आ सकता, करेक्ट। यहाँ से हम ए को भी कैंसिल कर रहे हैं, तो ए भी नहीं आ सकता। 3 लोग अभी ही कैंसिल हो गए, राइट। जी या डी में से किसी को लोगे तो आप किसी को कैंसिल करोगे आप, करेक्ट। जी या डी में से किसी को कैंसिल करोगे तो एक और बंदा कैंसिल हो जाएगा, जी या डी में से कोई एक कैंसिल हो जाएगा, तो 4 लोग कैंसिल हुए। इसका मतलब अभी तक भी हम लोग मैक्सिमम 6 का ही टीम बना सकते हैं, राइट। सो ICF वाले में हम 6 का ही टीम बना पाएंगे, उसमें आगे बढ़ने का अभी जरूरत नहीं है। सो लेट्स अगेन थिंक कि हम क्या कर सकते हैं। तो चलो मान लो मुझे ई और ए के साथ ही बात आगे बढ़ानी है। जैसे ई लिया, ए लिया, ठीक है। अब फिर से इसको वर्कआउट करते हैं। ई ए ले लिया है हमने, यहाँ से ई के साथ एक और ले सकते हैं हम, और वो सी नहीं हो सकता, तो वो क्या हो सकता है, जे या आई में से कोई है। तो मान लो कि आई लेते हैं हमने, ई ए आई, ओके। मान लो कि आई लेते हैं हम लोग, so we have chosen EI, we have chosen A। F या J में से किसी को लेना, J को ले नहीं सकते, F को लेते हैं, we have chosen F, we have chosen F। H या D या HD में से किसी को लेना, लेट्स पिक अप HD, इसका मतलब हम D ले रहे हैं यहाँ पर, तो HD, और एक B जिसका कोई कंडीशन नहीं है उसको ले सकते हैं। तो गाइस ये अपना 7 लोगों का टीम पॉसिबल है। सारे कंस्ट्रेंट एक बार चेक कर लीजिए। चलिए पहले ई जे ई आई जे आई जे सी, ऐसे में से किसको लिया हमने, ई आई, तो मैंने यहाँ पर राउंड किया। एफ या जे में से और या नन में से किसको लिया हमने, एफ को लिया, तो राउंड किया। ए या सी में से हमने ए को लिया, तो राउंड किया हुआ। ए या नन में से हमने ए को लिया, तो राउंड किया हुआ। जी या डी में से हमने डी को लिया, तो राउंड किया हुआ। एच डी में से हमने एच डी को लिया है, राउंड किया हुआ। प्लस हमने एक बी को ऐड किया हुआ, बिकॉज बी का कोई कंडीशन था ही नहीं। इसका मतलब हम 7 का टीम साइज मैक्सिमम बना सकते हैं, एंड 8 पॉसिबल नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा 7। 8 पॉसिबल इसलिए नहीं, बिकॉज कम से कम 3 मेंबर को तो आपको निकालना ही निकालना है, कम से कम 3 मेंबर को आपको निकालना ही निकालना है। So 7 is the team size, and this was a very difficult question. Correct? I do not recommend that you, when you for the first time solve arrangement question, I do not recommend that you solve it on your own. Right? एक बार देख लीजिए कैसे कर रहे हैं, और फिर ऐसे क्वेश्चंस को अब आप जानते हैं कैसे आपका अप्रोच होना चाहिए।